Good morning, everyone. I am your English teacher, Manju Gupta. How are you today? I hope you are fine today. Are you ready to learn your English book? Okay, now take your Gulmohar book, class 1, and open it. Open your book, page number 33, and your lesson is 5, chapter 5, Daisy the cow. Daisy the cow. The cow means गाय. Cow means क्या होता है? बोलिए बच्चों. Cow means गाय. Daisy. Daisy cow का नेम है. Daisy किसका नेम है? इस cow का नेम है. इस लेसन में जो आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, this is a cow and Daisy is its name. तो आपको पता चला कि डेजी किसका नेम है? डेजी इज काव का नेम है. What can you see here in this picture? This is a little boy. Who is this? This is a little boy. His name is Jim. His name is Jim. And you can look here some animals. This is a goat. What is this? This is a goat. And these are hens. How many hens are here? Here are 1, 2, 3. 3 hens. You can see 3 hens in this picture. And what is the boy doing? The boy is playing with these animals. The boy is playing with these animals. And now look here. Look here at this picture. What can you see here? Yes, this is Jim. Jim. And this is Aunt Katie. This is Aunt Katie. And this is her cow. This is her cow. This is a cow and its name is Daisy. This is cow's home. This is cow's home. Now get ready to study this lesson. Okay? Now start. Jim likes the animals on Aunt Katie's farm. He likes Bailey, the little black goat. He likes the noisy hens and the gentle sheep. But there is one animal Jim is afraid of. Once again, read it. Jim likes the animals on Aunt Katie's farm.
He likes Billy, the little black goat. He likes the noisy hens and the gentle sheep. But there is one animal Jim is afraid of. Now the next paragraph. Jim says, I am afraid of the bear with the horns. It stares at me with large brown eyes. It makes a loud noise. Aunt Katy says that isn't a bear. That is my good cow, Daisy. She will not hurt you. Read it again. Jim says, I am afraid of the bear with the horns. It stares at me with large brown eyes. It makes a loud noise. Aunt Katy says, that isn't a bear. That is my good cow, Daisy. She will not hurt you. Now turn the page. Okay? Turn the page, and this page is 34. Page number 34. But Daisy is making loud noise at me, says Jim. But Daisy is making loud noise at me, says Daisy. Aunt Katy says, no, that is Daisy, mooing loudly. Aunt Katy says, no, that is Daisy mooing loudly. She is hungry. She is hungry. Aunt Katy gives Daisy some hay to eat. Aunt Katy gives Daisy some hay to eat. Slowly, Jim walks up and stands beside Daisy. Slowly, Jim walks up and stands beside Daisy. She makes a soft moo sound when he pets her. She makes a soft moo sound when he pets her. I am not afraid of Daisy now. I am not afraid of Daisy now. Jim tells Aunt Katy. Jim tells Aunt Katy. Here are some new words. Literate, noisy, afraid of, horns, stairs, large, hurt, hungry, moo. Noisy,
afraid of horns, stairs, large, hurt, hungry, move. And now get ready to know this lesson 5 Daisy the cow in हिंदी। अब हम इस लेसन को हिंदी में पढ़ेंगे। I will explain this lesson in Hindi. Now get ready. Okay. Let's start from here. Jim likes the animals on Aunt Katie's farm. Jim Aunt Katie's के खेत के जानवरों को पसंद करता है। फार्म मीन्स क्या होता है? खेत। जिम क्या पसंद करता है? आंट केटी के फार्म के एनिमल को पसंद करता है। जिम आंट केटी के खेत पर जानवरों को पसंद करता है। वहाँ जाके उनके साथ खेलना कूदना उसे बहुत पसंद है। आपको भी छोटे छोटे जानवर बहुत पसंद है ना? उनके साथ खेलना भागना उन्हें पकड़ना आपको पसंद है? यस, एनिमल्स भी बहुत प्यारे होते हैं। छोटे छोटे एनिमल के बेबीज़ जो हैं, एनिमल बेबीज़ जो होते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत क्यूट होते हैं। बच्चों को तो बहुत पसंद आता है उनके साथ खेलना। इसलिए जिम को भी इन छोटे छोटे जानवरों के साथ खेलना बहुत पसंद है। इसलिए वो आंट केटी के फार्म में हमेशा आता है। क्या करने आता है? एनिमल्स के साथ खेलने आता है। Now look here. Jim likes the animal on Aunt Katie's farm. Jim Aunt Katie के खेत पर जानवरों को बहुत पसंद करता है। He likes Bailey. वह बेली को द लिटिल ब्लैक गोट छोटी काली बकरी को पसंद करता है। जिम किसे पसंद करता है? जिम जिम कौन है? ये छोटा बॉय है, छोटा लड़का है ये जिम। जिम क्या पसंद करता है? छोटी काली बकरी बेली को वह पसंद करता है। He likes Bailey the little black goat. वह छोटी काली बकरी बेली को पसंद करता है। He likes the noisy hens and the gentle sheep. वह शोर करने वाली मुर्गियों और अच्छे भेड़ को पसंद करता है। बट मीन्स लेकिन देयर इज वन एनिमल जिम इज अफ्रेड ऑफ मीन्स डरा हुआ। लेकिन एक जानवर है, लेकिन वहाँ देयर मीन्स क्या होता है? वहाँ, लेकिन वहाँ एक जानवर है जिससे जिम डरा हुआ है। जिम क्या हो गया? जिम डरा हुआ है। आपको भी कभी किसी चीज़ से डर लगता है? कोई बड़ा जानवर आ जाए आपके सामने
तो आप डर जाते हैं। आप ज़रूर डर जाते होंगे, क्योंकि जो एनिमल हम नहीं जानते हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, और बड़े एनिमल को देख के हम डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे काऊ है, ये इतना बड़ा जानवर है ना, लेकिन ये बहुत सीधी सादी जानवर है। ये किसी को चोट नहीं पहुँचाती है। काऊ कभी किसी को चोट पहुँचाती है? नहीं पहुँचाती है। काऊ तो पेट एनिमल भी है, और काऊ डोमेस्टिक एनिमल भी है। नाउ read here. Jim says, I am afraid of the bear with the horns. जिम कहता है, says means कहता है, जिम कहता है I am afraid of the bear with the horns. मैं सींग वाले भालू से डरा हुआ हूँ। मैं सींग वाले भालू से डरा हूँ। भालू का सींग होता है? नहीं होता है, लेकिन काऊ का सींग तो है। इसलिए काऊ को वो कभी देखा नहीं था। ये एक काली गाय है, तो इसे ये एक बड़ा भालू समझता है, जिसके 2 सींग हैं। इसलिए वो डर गया है। इसलिए जिम डर गया है। जिम कहता है, मैं सींग वाले बड़े भालू से डरा हुआ हूँ। इट स्टेयर्स एट मी विथ लार्ज ब्राउन आइज। यह मुझे तिरछी नज़र से भूरी आँखों से देखता है। यह मुझे अपने बड़ी भूरी आँखों से घूरता है। It makes a loud noise. यह तेज आवाज करता है। यह जानवर कैसा आवाज करता है? यह तेज आवाज करता है। किसने कहा यह तेज आवाज करता है? जिम ने कहा। Aunt Katy says, Aunt Katy कहती हैं, says means कहती हैं या कहता है। Aunt Katy कहती हैं, That isn't a bear. यह भालू नहीं है। यह भालू नहीं है। That is my good cow, Daisy. यह मेरी अच्छी गाय डेज़ी है। यह मेरी अच्छी गाय डेज़ी है। She will not hurt you. यह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। हर्ट मीन्स होता है चोट पहुंचाना। हर्ट मीन्स होता है चोट लगना या चोट पहुंचाना। She will not hurt you. यह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी। क्योंकि काऊ is a gentle animal. The cow is a gentle animal and she never hurts anyone. काऊ एक अच्छी जानवर है। यह सीधी सादी जानवर है। यह किसी को चोट नहीं पहुंचाती है। Now turn the page number 34. Let us start. But Daisy is making loud noises at me, says Jim. Jim कहता है, says means कहता है, Jim कहता है कि लेकिन Daisy is making loud noises at me. Daisy मेरे ऊपर तेज आवाज़ में बोलती है। Daisy मेरे ऊपर तेज आवाज़ करती है। Daisy क्या कर रही है? Daisy लेकिन डेज़ी मेरे ऊपर तेज आवाज़ कर रही है। काऊ जिम को देख के बहुत तेज आवाज़ में मौ ऐसे बोलती है, तो जिम डर जाता है
और आंट केटी के पास छुप जाता है और आंट केटी से कहता है कि यह सींग वाला काला भालू मुझे डरा रहा है। यह बहुत तेज आवाज़ करता है, यह बहुत तेज आवाज़ कर रहा है, इसलिए मैं डरा हुआ हूँ। आंट केटी सेज, आंट केटी कहती हैं, नो, दैट इज डेजी मोइंग लाउडली। आंट केटी कहती हैं, नहीं, वह डेजी तेज आवाज में बोल रही है। गाय कैसे बोलती है? मौ ऐसे करके बोलती है ना, तो गाय के बोलने की आवाज है मौ। मौ मीन्स होता है रंभाना। गाय है, भैंस है, ये क्या करते हैं? मौ करते हैं, रंभाते हैं। गाय के बोलने की आवाज को हम क्या बोलते हैं? रंभाना। तो काऊ है, वो तेज आवाज में मौ ऐसे करती है। कब करती है? जब उसे भूख लगती है या फिर उसे कोई प्रॉब्लम है या किसी को वो बुलाती है, तो ये अपने आवाज़ में बोलती है। गाय हमारी तरह नहीं बोल सकते ना, हम कोई भी जानवर हमारे तरह शब्द नहीं बोल सकते हैं ना, हमारे तरह कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इनके पास कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये अपनी भाषा में बोलते हैं। सारे जानवर के अपने अपने आवाज़ होते हैं, सभी अपने अपने तरीके से बोलते हैं। आंट केटी सेज, आंट केटी कहती हैं, नो, दैट इज डेजी मोइंग लाउडली। नहीं, वह डेजी तेज से बोल रही है। शी इज हंग्री, वह भूखी है। शी इज हंग्री, वह भूखी है। गाय को भूख लगी है, इसलिए वह तेज आवाज में बोल रही है। आंट केटी गिव्स डेजी सम hay to eat। आंट केटी डेजी को कुछ सूखी घास खाने को देती हैं। आंट केटी डेजी को कुछ सूखी घास खाने को देती हैं। स्लोली जिम वॉक्स अप एंड स्टैंड्स बिसाइड डेजी। स्लोली मीन्स धीरे से या धीरे धीरे जिम चलता है और डेजी के बगल में खड़ा होता है। धीरे धीरे जिम चलता है और डेजी के बगल में खड़ा होता है। She makes a soft meow sound when he pets her। वह एक धीमी मौस आवाज में बोलती है जब वह उसे थपथपाता है, उसे थपकी देता है। जिम उसके पास जाता है और उसे धीरे धीरे ऐसे थपकी देता है, थपथपाता है, उसे सहलाता है, तो डेजी धीरे से मौ बोलती है, प्यार से मौ बोलती है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेजी नाउ। मैं अब डेजी से डरा नहीं हूँ। जिम टेल्स आंट केटी। जिम आंट केटी से कहता है, मैं अब डेजी से नहीं डरा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, आंट केटी से क्या दे रही है? कुछ सूखी घास खाने को दे रही है। आप विलेजेस में देखे होंगे ना, सूखी घास पुआल जिसको कहते हैं। तो ये वही सूखी घास है। काऊ हरी घास भी खाती है और ये सूखी घास भी खाती है। काऊ को हम लोग रोटी भी दे सकते हैं, जिनके घर में होते हैं वे दे सकते हैं, वे भी खा लेती हैं। और ये बहुत प्यारी जानवर है, किसी को चोट नहीं पहुंचाती है।
तो इस लेसन में किसके बारे में बताया गया है? कौन से जानवर के बारे में बताया गया है? इस लेसन में काऊ के बारे में बताया गया है कि काऊ एक सीधी सादी और अच्छी जानवर है। यह किसी को चोट नहीं पहुंचाती है। यह देखने में बड़ी होती है। इसके हॉर्न्स हैं, इनके 2 हॉर्न्स हैं एंड 4 legs है। 1 mouth, 2 ears and 2 eyes and a long tail. यह जानवर भले ही देखने में बड़ी है लेकिन ये बहुत जेंटल एनिमल है, बहुत सीधी सादी जानवर है। आप अपने घर के आसपास या कहीं विलेजेस में जाते होंगे तो काउस को ज़रूर देखे होंगे। अब अगर आपको काऊ से डर लगता है तो इस बार जब भी काऊ के पास आप जाएंगे तो देखेंगे उसे ध्यान से, उसे प्यार से सहलाएंगे तो आप देखेंगे कि वो आपको चोट नहीं पहुंचाती है। लेकिन आप ऐसे अकेले काऊ के पास मत जाइएगा क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है ना। जब आपके साथ कोई बड़ा व्यक्ति हो, आप अपने साथ किसी बड़े लोग को लेके ज़रूर जाएंगे काउस को देखने के लिए। Now read these words. Noisy means शोरयुक्त। afraid of means डरा हुआ। horns means सींगे। stairs means घूरना। large means बड़ा। hurt means चोट पहुंचाना या चोट। hurt means चोट। hungry means भूखा। maw means रंभाना या गाय के बोलने की आवाज़। Now here is some figures and put these figures in the correct order. Write the numbers 1 to 4 in the boxes. यहाँ 4 figures दिए गए हैं, यहाँ 4 boxes भी हैं। इनमें हमें सही नंबर फिल करना है कि कौन सी स्टोरी में कौन सा फिगर पहले आएगा। The first number is here. जिम एक गोट के साथ खेल रहा है। सेकेंड नंबर इज हियर। जिम काऊ से डरा हुआ है। काऊ इसके ऊपर आवाज़ कर रही है और जिम डरा हुआ है। थर्ड, आंट केटी काऊ को कुछ घास देती है खाने को। फोर्थ, जिम गाय के साथ खेलता है, उसे थपकी देता है। अब जिम को गाय से डर नहीं लग रहा है। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 and this 4 नंबर। Now look here. Answer these questions. इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। Which animals does Jim like? कौन सा एनिमल जिम पसंद करता है? Jim likes the hen, the goat and the sheep. जिम कौन कौन से जानवर पसंद करता है? जिम मुर्गी, बकरी और भेड़ को पसंद करता है। Second question is complete these sentence. Jim is afraid of Daisy because she stares at him and make a loud noise. Jim डेजी से डरा हुआ है क्योंकि वह उसे घूरती है और
तेज आवाज करती है। जिम डेजी से डरा हुआ है क्योंकि वह उसे घूरती है और तेज आवाज करती है। The third question is, why does Daisy mow loudly? Why does Daisy mow loudly? Daisy mows loudly because she is hungry. Because she is hungry. Daisy जोर से बोलती है क्योंकि वह भूखी है। डेजी जोर से क्यों बोलती है? क्योंकि वह भूखी है। What does Aunt Katy do when Daisy mows loudly? आंट केटी क्या करती हैं जब डेजी जोर से बोलती है? जब डेजी जोर से रभाती है तो आंट केटी क्या करती हैं? Aunt Katy gives Daisy some hay to eat. Aunt Katy gives Daisy some hay to eat. Aunt Katy डेजी को कुछ सूखी घास खाने के लिए देती हैं। Aunt Katy डेजी को कुछ सूखी घास खाने को देती हैं। Read the question answers again. Which animal does Jim like? Jim likes the hen, the goat, and the sheep. Complete this sentence. Jim is afraid of Daisy because she stares at him and makes a loud noise. Why does Daisy mow loudly? Daisy mows loudly because she is hungry. Daisy mows loudly because she is hungry. What does Aunt Katy do when Daisy mows loudly? Aunt Katy gives Daisy some hay to eat. Now fill it in your book and learn it. Read this lesson. Daisy the cow. Read this lesson, Daisy the cow, 2 times and learn it and enjoying the lesson. Okay? Goodbye and take care.